And joining me tonight, Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP, Ishkaran Bhandari, advocate Vandana Singh, leader of the Samajwadi Party, Pawan Agri, national spokesperson of the RLD. Also joining us in just a minute from now is Acharya Pramod Krishnan, leader of the Congress Party. But my first question goes to Vandana Singh. Vandana Singh, today I spoke with the election commissioner and he made a very pertinent point. He said that there have been several elections where the opposition has won. Just a short while ago, there were the West Bengal elections and the BJP lost, Mamata Banerjee won. But no chief minister till date who's won through the EVMs has said they won't swear themselves in because they don't have faith in the EVMs. So when the EVMs give them the result that they want, they're fine with it. They form the government, they become chief ministers, all their swearing in ceremonies go on schedule. But every time there is a little bit of a doubt in their mind, it's always the EVM to be blamed. Isn't this the same situation for the Samajwadi Party today? Look, Navika ji, there have been videos, there is evidence to support this. Why has it happened? And that too, this time, during the election. Now you tell me, I mean, I don't take Mr. Agarwal's assurance, the commissioner. Why EVM is taken, Mr. Agarwal, what was his name? The commissioner in Banaras, where this happened, right? Okay. I don't understand why EVM is being used and taken for training purposes now. They could have waited, or it could have happened before the election or after the election. Now, why middle of the elections? It's too convenient to say this. And no one in his right mind, would hold a training exercise in the middle of the election. And I think all the opposition must jointly insist that the EVM and VVPAT must be compared for randomly chosen polling booths in every constituency in Banaras. But then only we will know what is the truth. But that's done, and Vandana Singh ji, the matter has been looked at by the Supreme Court. The matter has been looked at by the Supreme Court. The Chief Election Commissioner has said that all the numbers of the testing machines were checked by representatives of each party. They agreed with the explanation. They checked the numbers were not, because they note down the numbers of the numbers of the EVM machines where the votes are inside and they are in the strong room. The numbers of the machines that were being used for training were different. Point number one. Point number two, the fact is that 7th was the polling date in Varanasi. On 8th and 9th were the only 2 days where you do once again a recap of the training, because these are not officials who are trained to count election. These are people who are drawn from all over the country and they are given a refresher course just before the counting day. So where is the question of why is it happening now? Why in other constituencies there was time to do this? Varanasi was the last constituency to go to vote, so it had to be done between 8th and 9th. Why did Commissioner admit that there was a lapse in the protocol? Why did they suspend the AGM if all was well? You tell me. There was something wrong somewhere, and the rule is, like Akhilesh Yadav mentioned, why didn't they invite the representative of the political parties, other participating political parties, when they wanted to do this? They should have. Shehzad Poonawalla, was the protocol violated, or are you just taking this issue too lightly by trying to say कि ये बहाना है? It's a question that's being asked by the Samajwadi Party. देखिए, ताउम्र गालिब और अखिलेश यही गलती करता रहा। धूल चेहरे पर थी, गालिब और अखिलेश चुनाव आयोग को बदनाम करता रहा। देखिए, चुनाव आते हैं और चुनावों में हार नजर आती है तो जिनका लीडर हैक हो चुका है वो ईवीएम हैक होने की दुआई देते हैं। और ये 2019 में भी ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, ये 2022 में भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हाँ, जब ईवीएम से चुनाव जीते 2012 में, तब ये इनको इस प्रकार
कोई भी बात समझ में नहीं आए, तब सारा कुछ सही था। ये चयनात्मक कमिटमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी है। अगर पंजाब में चुनाव जीतो, दिल्ली में चुनाव जीतो, राजस्थान में चुनाव जीतो, इलेक्शन कमीशन ठीक है, ईवीएम ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और अगर कहीं पर चुनाव हारने की जो नौबत आती है तो वहां पर ईवीएम को दोष, ईसी को दोष, सुप्रीम कोर्ट को दोष और फिर जनता को भी दोष देने शुरू कर देंगे। तो मैं यही कहता हूं कि देखो, समाजवादी पार्टी को लोगों ने किया दफा, तो इनको लगती है ईवीएम बेवफा। अब मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। नाविका जी, जो समाजवादी पार्टी की नेत्री है, एक सेकेंड नाविका जी मैंने पूरी बात सुनी। नाविका जी, ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जब भी मैं अपनी बातें रखता हूं आपके चैनल पर, मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिलता। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है किसी भी डिबेट और डिस्कशन में? अपनी अपनी बारी में बोल सकते हैं सभी लोग। नाविका जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो एक्सप्लेनेशन कमीशन ने दिया है, पोल्ड मशीन्स जो होती है, पोलिंग के लिए मशीन्स होती है, वो एक सूचीबद्ध तरीके से वो तमाम जो प्रत्याशी है उनके नुमाइंदों को दी जाती है। ये ट्रेनिंग वाली मशीनें थी और उनके नंबर और जो पोलिंग की मशीनें थी उनके नंबर अलग अलग होते, ये क्लैरिफाई कर दिया गया है, वो नंबर चेक हो सकते हैं। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो स्ट्रांग रूम होते हैं जिसमें कि इलेक्शन कमीशन की मशीन्स ईवीएम रखी जाती है, उनको पता है कितने टायर की सिक्योरिटी होती है? क्या वंदना जी बता पाएंगी कि उसकी कितने टायर की सिक्योरिटी होती है और किस प्रकार की सिक्योरिटी होती है? और क्या उनको भारत के सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा नहीं है, परंतु दूरबीन के साथ खड़े हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर भरोसा है? मतलब जो स्ट्रांग रूम में 3 टायर सिक्योरिटी के तहत सीसीटीवी के साथ अगर आपके सुरक्षा कर्मियों के बीच ये स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, उन पर उनको भरोसा नहीं है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार दैट इज द पॉइंट। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका सवाल है, इसलिए चुनाव आयोग पर निशाना है। आपकी शिकायत है। अब आप ये बता दें, आपने इतना लंबा चौड़ा सवाल किया है। पहले तो आपने कहा चुप रहिए, मैं ना मेरा सवाल है ना मेरी शिकायत है कि आपकी शिकायत है, केवल आपने ये हिदायत बता है दीजिए। कि चुनाव आयोग को बख्श दे। नहीं, प्रमोद कृष्णन सवाल जी, तो उठेंगे। आज एक नहीं, मिनट सवाल वंदना जी, आपको एक मिनट आचार्य जी से सवाल पूछ रही हूं। 1 मिनट आचार्य जी, ये 24 घंटे पहले या 12 घंटे पहले चुनाव के रिजल्ट से हर बार देखा जाता है कि ईवीएम पर सवालिया निशान। क्या ये एक पैटर्न है? क्या ये एक, जैसे सर्दी जुकाम होता है, मौसम बदलता है तो सर्दी जुकाम लाजमी है, वैसे ही जैसे ही चुनाव के नतीजे आने होते हैं वैसे ईवीएम पर भरोसा कम होना भी लाजमी हो जाता है? मैं पूछना चाहती हूं, हैकाथॉन हुआ, कोई गया नहीं। एनसीपी और सीपीएम गए थे हैकाथॉन के लिए, लेकिन देखकर वापस आ गए, किसी ने हैक करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2017 में, वीवीपैट का इशू जो है 2019 में, कल के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट को लेकर एक पिटीशन डाली गई थी और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में दखल नहीं देंगे, ये मुद्दा सेटल हो चुका है। ये कितनी बार सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और हैकाथॉन और इतना सब होने के बावजूद ये विपक्ष को क्यों नहीं समझ आता कि ईवीएम जो है वो भरोसे की चीज है? बल्कि जब विपक्ष जीतती है तो कोई नहीं कहता कि हम शपथ नहीं लेंगे, भाई ये तो ईवीएम से निकला और ईवीएम पे हमारा भरोसा नहीं है। लिया ना, शपथ ली ना भूपेश बघेल जी ने, ममता बनर्जी ने, वो भी तो रिजल्ट चुनाव के ईवीएम से ही आए थे। नाविका जी, विषय बहुत गंभीर है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। कई सवाल आपने बड़े महत्वपूर्ण मुझसे किए हैं जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, मैं ईवीएम का पक्षधर, ना ईवीएम का वकील हूं, ना मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर भाजपा या कोई भी सरकार के कब्जे में ईवीएम होता तो फिर ना तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बदलती, ना वसुंधरा राजे गद्दी सौंपती, ना रमन सिंह गद्दी सौंपते। और मुझे लगता है कि ईवीएम अगर भाजपा के कब्जे में होती तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं होती और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पहली बार चुनाव हुए तो नहीं होते।
दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ये सवाल और ये प्रश्न उठाना ये थोड़ा जायज नहीं लगता है, ये प्रासंगिक भी नहीं लग रहा है। जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूं, वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और बड़े संयमित और मर्यादित व्यक्ति हैं। वो किसी के खिलाफ टिप्पणी भी कोई अमर्यादित भाषा में नहीं करते हैं। वो उनके ऊपर जब हमले होते हैं तो वो उसको सहते हैं, लेकिन उन्हें इस वक्त ये बात नहीं कहनी चाहिए। पहली बात तो ये रुझान है, रुझान नहीं है, ये एक अनुमान है। तो कल उनको शायद ये कहना ज्यादा अच्छा रहता कि वो अगर कल रिजल्ट का इंतजार करते और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें जो संवैधानिक संस्था है इन पर हमें यकीन करना ही पड़ेगा। अगर ईवीएम पर हमारा कंट्रोल है या हमारा मशीनरी से चुनाव जीता जा सकता है, तो 2017 में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तो वो फिर कैसे चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर हमें कहीं ना कहीं कोई फेथ का एक ऐसा सेतु कायम करना पड़ेगा कि और हम अगर नहीं कायम करेंगे तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी चरमरा जाएगी। दूसरा सवाल आया, एक इंपॉर्टेंट चीज आई है कि भाई ईवीएम की मशीनें कहीं मिली हैं, तो ये एक सवाल पैदा होता है, लेकिन क्या ये लापरवाही है या ईवीएम को मैनेज करके चुनाव का परिणाम बदला जा सकता है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जहां तक ईवीएम में लापरवाही का सवाल है वो देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम साथियों ने जो दिखाया कि भाई एक एडीएम मशीनों को लेके जा रहे थे और कहीं ना कहीं कूड़े में पड़ी मिली, ये सवाल तो हैं। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है नाविका जी, आपके इस चैनल से शहजाद पूनावाला से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनका कद धीरे धीरे राजनीति में बढ़ रहा है। अभी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक गलती करता रहा, तो अखिलेश यादव एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। वो ये कह देते कि अखिलेश यादव ये गलती करते रहे तो भी अच्छा लगता। मेरा आग्रह और मेरी सलाह है उनको, बाकी तो राजनीति में सब कुछ चलता नहीं। आपने मैं शहजाद पूनावाला को लाना चाहती हूं अंदर, लेकिन मैं आपने दो मुद्दे उठाए कि क्या लापरवाही हुई। ये दोनों सवाल मैंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंटरव्यू किया तो मैंने पूछे और उन्होंने कहा कि जो नंबर मिले जिन ईवीएम्स के, वो नंबर जो सूची में थे, जो अंदर जमा हैं, उनसे अलग थे। इसीलिए वहां पर हर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो शांत हो गए ये देखकर कि ये नंबर उनसे मेल नहीं खाते। तो ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो कचरे के डब्बे वाली बात है, उन्होंने ये भी साझा किया कि ये जब ट्रायल हुआ था ये पेपर्स थे जिनको श्रेड करके फेंकना चाहिए था और श्रेडिंग नहीं हुई थी, इसीलिए उस बंदे को सस्पेंड किया गया था और ये ट्रायल्स के दौरान थे ये पेपर, और ये पेपर किसी भी तरह से वीवीपैट या ईवीएम मशीन के नहीं थे। अब आपने जो शहजाद पूनावाला जी के लिए मुद्दा उठाया, शहजाद उसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी शहजाद भाई। देखिए मैंने तो केवल एक गालिब की जो कपलेट है उसको मैंने कोट किया है और उसमें जो शब्दावली का इस्तेमाल है वो किया है। परंतु जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग के प्रति इतना अविश्वास हो, जिस व्यक्ति को देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इतना अविश्वास हो, जिस पार्टी को हमेशा ही हमारी सुरक्षा बलों के प्रति इतना अविश्वास हो, जिसने बार बार सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हो या बाकी भी जो प्रसंग आए हैं उसमें सुरक्षा बलों पर सवाल उठाया है, तो मैं कह सकता हूं आचार्य जी की, चलिए मैं शब्दों में उनका सम्मान कर भी दूं, परंतु भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और मेरे मन में ऐसी पार्टियों के लिए कोई सम्मान भाव नहीं हो सकता जो देश के संवैधानिक संस्थाओं पर केवल अपने पारिवारिक हितों को साधने के लिए बार बार चोट करते रहे। हां, मैं आपको आप बोल सकता हूं क्योंकि देखिए आज आप पार्टी के होते हुए भी, कांग्रेस पार्टी के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी से एक अलग लाइन ले रहे हैं और आप देश के हित में बात कर रहे हैं, आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। परंतु अखिलेश यादव जी से पूछिए, उनकी पार्टी की प्रवक्ता से पूछिए कि बार बार चुनाव से पहले इस प्रकार से अविश्वास पैदा करना लोकतांत्रिक संस्थाओं में, क्या ये हमारे लोकतंत्र का सम्मान करना होता है? For yourself, your party. Don't speak for Bharat. You're not representing us. You're only representing a political party called Bhajpa. नहीं, so please stop mentioning Bharat में ये हुआ, भारत में हुआ। के बारे में तो बोल सकता हूँ ना कि sound like नहीं, भारत में अच्छा, तो भारत की जनता जिसे सेवा करने का मौका देती है उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं, पर जिसको भारत की जनता ने नकारा है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है, वो चुनाव आयोग पर
आघात चलेगा? करे, वो सुरक्षा वो बलों पर कब पता सवाल चलेगा? उस पे उठाए कब और हम discussion सुनकर ले करेंगे? We'll इसको। discuss that tomorrow. We'll discuss that tomorrow. Leave today. There are 2014, a couple of hours to go. 2017 और 2019 में तो Don't पता be चल so गया है ना presumptuous. वंदना जी। एक मिनट देखिए, मुझे लगता Ishkaran है कि Bhandari, अहंकार Ishkaran का भाव Bhandari, नहीं I होना want to चाहिए। come in here. कम से कम I want to हार में come in नम्र here होना चाहिए। and the issue here is the faith in the EVM, the faith in the democratic process. And I want to ask you one thing. Is the Samajwadi Party, and I'm asking you this question as a journalist who wants to know, is the Samajwadi Party a party that questions everything? They questioned the vaccination, they called it the BJP vaccination, and therefore people should not touch the BJP vaccination. They've questioned the EVM, ke EVM machine bhi BJP ki hai. I want to ask you, where is this going to lead us? Is this not going to create doubt in the minds of people? After all, every 5 years, people have to, politicians have to go back, political parties have to go back to the people of this country for them to make a choice. Now, every time, can that choice be questioned because you want to raise questions about the medium through which that choice is expressed? Navika ji, I think the debate on EVM is over. And the people of India know it is a safe, secure way of doing election. BJP would have not lost 2004 election if EVMs were hackable. Congress would have not lost 2014 election if EVMs were hackable. BJP would have not won 2017 elections if EVM were hackable. So the debate has been settled not only by the past, where ruling parties have lost because EVM is not hackable, and also because the Supreme Court, I was a part of the case when the hearing on VVPAT was going on, and the Supreme Court had introduced that VVPAT should be a part of the EVM system. So that debate has been well settled, and I don't think so any citizen of this country buys an allegation in which we say EVMs are hackable. As you rightly mentioned, we had a hackathon where political parties were given a chance that if you can hack it, please hack it so that we have a secure democracy. But nobody hacked it. As a rallying point, we keep on having allegations on Election Commission. But do people remember that a chief election commissioner was made a union minister by Congress? That is Mr. M.S. Gill. And Navika ji, I'm sure you remember the tenure of Naveen Chawla, who sitting CEC said that should be removed as an election commissioner. The then government, UPA government, rejected it and made him a CEC. So we all remember what has happened in the past, but that doesn't count. When it comes to EVM, it is very clear, it is safe, it is secure, it is not hackable, and that is why we see that in multiple elections across the last 10-15 years. पवन आगरी जी RLD से हैं। पवन आगरी जी, क्या आप भी समझते हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ हेर फेर हो चुका है या होने की कोशिश हो रही है? और आज बहुत लोग कहते हैं कि आज कयामत की रात है। आज रात में कुछ होने वाला है, कोई कयामत आने वाली है? जी, मैं आपको एक बात बता दी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो शासन प्रशासन की होती है, चुनाव आयोग की होती है, और यदि कहीं किसी को उसमें संदेह हो रहा है तो उसके लिए वो निसंदेह जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। और यदि वो जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद वाराणसी के डीएम और एसएसपी वहां चेंज नहीं होते। तो मैं चुनाव आयोग के निर्णय से संतुष्ट हूं, लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि चुनाव से पूर्व पता नहीं उनकी कोई परमिशन नहीं होती है, लोगों को उनके संज्ञान में नहीं डाला जाता जो प्रत्याशी हैं, जिसके कारण से ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लापरवाहियां हैं, यदि ये लापरवाही ना हो तो शायद इस जो संवैधानिक संस्था है इसके प्रति लोगों का विश्वास बिल्कुल अक्षुण्ण रहेगा और पूरी तरह से उन पर कायम रहेगा। और ये सारी व्यवस्थाएं ये तभी कायम रह पाएंगी जब हम लोग इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि पारदर्शी हम नहीं बना पा रहे हैं सिस्टम को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। पारदर्शी आप कैसे चाहते हैं, कैसे बन सकती है पारदर्शी? शहजाद पूनावाला, पारदर्शी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? क्योंकि हैकाथॉन बुलाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में गया है, और हर बात पर सुप्रीम कोर्ट में 2 ऐसे केसेस 2019 में थे। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा केस सुनने से मना कर दिया है। तो शहजाद पूनावाला, पारदर्शिता में कहां कमी है?
देखिए नाविका जी, अभी अभी ईश्वरन भंडारी ने आपको पुराने इतिहास के बारे में बताया है कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स का, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए मान लेते हैं आपका आरोप 1 मिनट के लिए सही है, अगर आपके पास ठोस सबूत है तो क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में भी आपकी सुनवाई नहीं होगी? वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है। आप बड़े से बड़ा वकील खड़ा कीजिए, और कांग्रेस पार्टी और आप वैसे एक ही है, अलग अलग नहीं है ज्यादा, तो वहां के इतने बड़े बड़े वकील है, उनको खड़ा करके आप आर्ग्यू कर दीजिए उनके ऊपर कार्रवाई। क्या कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा? देखिए ये वो लोग हैं नाविका जी, जिन्होंने वैक्सीन बनी तो वैज्ञानिकों का अपमान किया और कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है। ये इस प्रकार से भ्रम फैलाया ताकि लोग वैक्सीन ना ले। ये इन्होंने कहा कि नपुंसक बन जाएंगे वैक्सीन लेने पर। ये इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग जब हार नजर आती है तो देश के और लोकतंत्र के संस्थाओं के खिलाफ कैसे अविश्वास पैदा किया जाए और अराजकता फैलाने के लिए, ताकि एक माहौल को बिगाड़ा जा सके, इसके लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। और आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन्होंने वैज्ञानिकों का अपमान किया, सैनिकों का अपमान किया, क्या उनका सम्मान करना चाहिए? आचार्य जी जवाब दीजिए। देखिए शहजाद पूनावाला जी, मैं तो सवाल मुझसे आप कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं नाविका जी कि मुझे ट्विटर पे लोग कितने गाली गलौज करते हैं, कितनी अभद्र भाषा करते हैं। जो लोग हमें गालियां देते हैं हम तो उनको भी आशीर्वाद ही देते हैं। मैं उनको गालियां देना शुरू करूं, ये मेरा संस्कार नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो करते रहे। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न इम्पोर्टेंट ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं नाविका जी, तो उन पर फेथ क्यों नहीं है? मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं तो कंप्यूटर चलाना भी अच्छी तरह नाविका जी नहीं जानता हूं। और लेकिन अब मुझे इसको कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि मैंने कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह मैं सीख सकता था, लेकिन मैंने नहीं सीखा, ठीक है। बट मेरा एक फेथ है। मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी जो आज विपक्ष में है, अगर इनको ईवीएम पे डाउट है तो इलेक्शन कमीशन में जाके कहना चाहिए था कि भाई हमें ईवीएम से चुनाव अगर कराएंगे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तो बात जमती। लेकिन वोट पड़ चुका है, पहले फेज का, दूसरे फेज का, तीसरे फेज का, 7 फेज के उत्तर प्रदेश के वोट पड़ चुके हैं, उत्तराखंड पड़ चुका है, पंजाब पड़ चुका, सब वोट पड़ चुके हैं। पढ़ने के बाद कल रिजल्ट आने वाला। आज ये कहना कि साहब ईवीएम गलत है, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो मुझसे पहले अभी आपकी डिबेट में वक्ता बोल रहे थे, मैं उनका साथ खड़ा हूं इस बात में कि वो जो फेथ कायम होना चाहिए वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास क्यों उठ रहा है, संदेह क्यों उत्पन्न होता है, तो ये एक सरकार को भी चाहिए कि अगर सवाल उठता है तो उसका समाधान करे। जहां तक सवाल है ईवीएम से परिणाम बदला जाता है, 2004 और 2014 के बीच में भी उठे थे आचार्य जी। सवाल तो 2004 और 2014 के बीच में भी उठे थे। नाविका जी मैं तो खुद कह रहा हूं, नाविका जी मैं तो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। और अभी शहजाद पूनावाला ने एक और बात कही थी कि पार्टी लाइन से हट के आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात करें। सवाल मेरे कहने का नहीं है, पार्टी लाइन में, मेरी पार्टी में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाविका जी के शो में आने से बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसे, लेकिन मेरी पार्टी मुझे स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये भी बात है, मेरी पार्टी में ऐसे लोग हैं कि नहीं साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम की इंडिपेंडेंट है और वो इंडिविजुअल वॉइस है, वो अपनी राय रख सकते हैं। मेरी पार्टी में ये अधिकार भी है, मुझे दे रखा है। तो प्रश्न ये है कि आज ईवीएम, जैसे 2017 में अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, तो क्या संभव है कि कोई ईवीएम में गड़बड़ बिना किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के हो जाए? तो सारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम तो उन्हीं के थे, सारे एसएसपी उनके थे, डीआईजी उनके थे, कमिश्नर उनके थे, लेकिन सरकार तो बदल गई। तो प्रश्न ये पैदा होता है, फिर मैं वही सवाल कर रहा हूं, कोई भी मुख्यमंत्री हारना नहीं चाहता। और सुनिए, दिल्ली का जब चुनाव हुआ तो आज डोर टू डोर कैंपेन होती है कोरोना की वजह से, लेकिन मुझे याद है भारत के गृह मंत्री अमित शाह दर घर घर जा रहे थे, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अगर ईवीएम का मसला होता तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री नहीं होते। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी पर भरोसा करना पड़ेगा। आचार्य जी, ये जो है ये हम सब पर भी लागू है। हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे, आप हम पर भरोसा नहीं करेंगे, तो ये दुनिया चलेगी कैसे? कहीं ना कहीं भरोसा सबको सब पर करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, हम सबको प्रिपेयर होना चाहिए कि जनता के मैंडेट को स्वीकार करें, जनता जो फैसला देगी बिल्कुल। और वंदना जी सुन रही हैं, और ये जो नसीहत है ये आचार्य
आचार्य जी दे रहे हैं वंदना जी, और आचार्य जी ज्ञानी मानी इंसान है, कम से कम आज उनकी जो सीख है हम सब लेकर जाएं कि ईवीएम जो है अब इसका रोना छोड़ दिया जाए। आप पहरा दे सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा सकते हैं, लेकिन ईवीएम को दोष देना शायद गलत होगा। क्या पता कल सारे एग्जिट पोल रॉन्ग हो जाएं। Who knows? It's happened in the past that exit polls have been proven wrong. Can it happen again tomorrow? Can Akhilesh Yadav tomorrow evening come back and say the EVMs were faulty if he actually wins the election? Well, we'll wait and watch, because here at 6 a.m. in the morning, we will begin with the election coverage. You have a date with us.